हम बनाए हैं, जो दिल के हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें बनाया है खुदा ने ऐसा वो आज हमारी महफिल में आए हैं। Chairman Dr. C.A. Mahesh Bhivandikar sir, respected Principal Ms. Sophia D'Souza ma'am, Vice Principal Ms. Sana Khan ma'am, and today's guest speaker Professor Dr. Dinesh Gupta sir, teaching and non-teaching staff, and a wonderful audience. I, Ms. Kunut Ansari from class FY-BMS, welcomes you all to the 6th Jnana Yagya series of academic year 2022-23 of Achievers College of Commerce and Management, Kalyan, organized by the Department of Management Studies. Jnana Yagya series is the initiative by Achievers Business Incubator to mold students like us to be the future entrepreneurs. And very important aspect is that our college has celebrated and still celebrating 75th Independence Day as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Same way, our chairman sir has a vision to give our country 75 bright entrepreneurs to rule the business world and be the lifetime achievers. A lamp does not speak. It introduces itself through its light. Achievers never expose themselves, but their achievement exposes them. Now, I request the dignitaries on the dais to come forward for lighting of lamp. For introduction and felicitation of our today's guest. A warm evening to all the dignitaries present on the dais. It's an honor to introduce our guest for today, Professor Dr. Dinesh Gupta. He is a dynamic personality, a well-known spiritual corporate trainer and mindset guru. He is also a gold medalist, mechanical engineer, author, motivational speaker, management consultant, and multiple world record holder. From ITI to IIT Bombay, his journey has been very inspirational. He has rich experience. He has also received more than 150 national and international awards for his excellence in various fields. He is the director of Amazing Records Private Limited and OMG Books of Records. His startup, Andashri organization, teaches creative brain yoga, science and spiritual corporate training. He is also the author of almost 12 renowned books. He is also a blog writer, rainwater harvesting consultant and spiritual guru who transformed more than 188,000 students till date. He visited more than 15 countries for robotic training, delivered more than 2,500 lectures on different topics. It's really a great opportunity for us all to have you, sir, among our members. We welcome you to Achievers College. I request our Honorable Chairman, sir, and Principal ma'am to felicitate our today's guest.
Thank you, Ms. Angela Lobo. Without wasting much of our time, I invite our today's guest, Professor Dr. Dinesh Gupta sir, to address us all. So please guys give big round of applause for Dr. Dinesh Gupta sir. Am I audible? Thank you very much, achievers, for calling me here to share my experience. जर्नी शुरू हुई थी 94 में। कोई जानता है मुझे यहाँ पर? किसी ने देखा मुझे ऐसे कहीं गाड़ी में बड़ा पाव खाते हुए? कुछ ऐसे देखा है किसी? नहीं देखा, अच्छी बात है। गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको पहले कि जब तक ये सेशन पूरा होगा, हो सके तो अपना सेल्फी निकाल के रख लो। जब तक आपका सेशन पूरा होगा आप वो नहीं रहोगे जो अभी 5 बजे आप बैठे, इतना गारंटी दे। मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन अब तक लोगों मैम ने बताया कि 1,88,000, एक्चुअली 2,88,000 हो गया। मुझे जो आंकड़ा है ये शायद बायोडाटा पुराना है, 16 किताबें हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में अभी नेपाल जाकर आया, बहुत सारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कितने लोगों को लग रहा है कि सही में आज कुछ होने वाला है? कितने लोगों को लग रहा है? सभी को लग रहा है? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच कि आपने जो विश्वास दिखाया मुझे। विश्वास और टाइम, ये दो चीज़ आपने मुझे दिया। इतना बारिश हो रहा है, चाहते तो आप घर पे जल्दी जा सकते थे, लेकिन आपने एक डिसीजन लिया है कि अपने को यहाँ पे रुकना है और खुद से सीख कर जाना है। जब आपने विश्वास दिया है, टाइम दिया है, तो मेरा भी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन गारंटी देता है पहले। अब ये कि स्टार्टअप करें कैसे, स्टार्टअप कहाँ से शुरुआत करें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई बताए ना कितने सारे बिजनेस है हमारे भारत में, कितने सारे बिजनेस चलते हैं हमारे भारत में, कितने सारे बिजनेस चलते हैं हमारे भारत में, कितने सारे बिजनेस चलते हैं? कोई भी बताइए, 10, 20, 15, 16, 17, 18 कितना है? यस। अच्छा, 3 रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। जब आपने हाथ ऊपर किया था कि सभी बिजनेसमैन बनना चाहते, सबको विश्वास है कि आज कुछ तो जो 5 बजे आप है, 5:30 बजे वो नहीं रहेंगे। आपको गारंटी दे रहा हूँ, सचमुच में गारंटी दे रहा हूँ। जो स्टॉक, टेडेक्स स्टॉक, दूरदर्शन, पता नहीं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, पता नहीं कितने जगह पर जाने का मौका मिला और हर जगह जाके लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहा था। तो 3 रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। पहला रूल है बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। बस करेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध 2500 साल पहले उन्होंने कहा था, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो पहला है बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। सेकेंड इज गिव योर 100%। गिव योर 100% देना अपने को। बस यहाँ पर आप बैठे ना, 100% दीजिएगा। बाहर क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, तूफान आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब चलता ही रहेगा। उसमें वो है, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। गिव योर 100%। एंड द थर्ड वन इज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। बस बाकी अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आपके साथ ऑनेस्ट रहना है। करेंगे, फॉलो करेंगे 3 रूल। सभी लोग हाथ करके बताएंगे। अच्छा, 5 लोग बोले हम लोग नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, वो भी करेंगे बाद में। मराठी में एक सीरियल आता है पटला तर ज्ञान। अगर वो चीज़ समझ में आती तो लीजिएगा, अगर आपको चीज़ समझ में आ रही तो 5:30 बजे के बाद भी फॉलो करते रहना। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक फॉलो करते रहना। 3 रूल, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, गिव योर 100% एंड बी ऑनेस्ट। अभी जर्नी की शुरुआत कैसे होती है? एक पर्सन रहता है, एक छोटा सा लड़का, ये मुझे लगता है 90s की बात है, कुछ 17-18 साल का लड़का था। STD पे जाता है और वहाँ पे फ़ोन लगाता है। बोले एक कॉल का कितना? बोले एक कॉल का 2 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 2 रुपया। 90s की बात है। उस समय आप लोग कहाँ थे? कोई बात नहीं। उस समय की बात है जब टेलीफोन गोल गोल लोग घुमा के कॉल करते थे, जब टेलीफोन बंधा हुआ रहता था और इंसान फ्री था। आज क्या हो गया? इंसान बंधा हो गया है। तो एक पर्सन ये फोन लगाता है, कहीं पर कॉल करता है, सर मुझे पता चला आपके यहाँ वैकेंसी है, तो मैं आपके यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। बोले अच्छा, लेकिन हमारे पास तो एक लड़का काम कर रहा है।
बोले कोई बात नहीं, वो जितना भी पगार लेता है उससे मैं 500 रुपया कम दूंगा। बोले तो 1500 रुपया लेता है, बोले मैं 1000 रुपये में काम करूंगा। बोले ना, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन। फिर उसके बाद कहता है वो कितना घंटा काम करता है, बोले वो 8 आवर्स काम करता है। बोले मैं 10 घंटे काम करूंगा, मैं 10 आवर्स में काम करूंगा। फिर भी वो कहता है कि नहीं, सामने से आवाज आती नहीं, हमारे पास वो जो लड़का हमारे यहाँ भले 8 घंटा काम करता है, भले ही 1500 में काम करता है, भले ही वो ऑनेस्टली काम करता है, हमको कोई दूसरा पर्सन नहीं चाहिए। जो एसटीडी वाला बैठा रहता है ना, एसटीडी पीसी वाला बैठा रहता है, उसकी बात सुनता रहता है। उस लड़के ने फोन रख दिया और उसका 2 रुपया देख के भी जा रहा था। उसने बोला बेटा 1 मिनट रुको जरा, मुझे एक सवाल पूछना है, तुमको नौकरी का इतना जरूरत है क्या? बोले नहीं, उसके यहाँ मैं ही काम करता हूँ, उसके यहाँ पर मैं ही काम करता हूँ, मैं ही वो लड़का हूँ जो उसके यहाँ पर काम करता है। बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास केवल 5 स्टेप होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर ये 5 चीजें हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर कोई भी बिजनेस होने दीजिएगा, कोई भी आइडिया होने दीजिएगा। कैशिफाई नाम की कंपनी पता है आपको? यस। क्या है? फोन सेल होता है उसमें। हाँ, सेकंड हैंड फोन सेल करके कैश मिलता है। हाँ, कैशिफाई जो है सेकेंड हैंड जो फोन है उसको वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर ये जो 5 चीजें अगर समझ में आ गई ना, कैसा भी होने दीजिएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा दिखता होगा, अष्टवक्र दिखता होगा, वो किसी भी मजहब का होने, वो लड़का है लड़की है, वो गुटका है, कोई लेना देना नहीं है। बस ये 5 चीज उसको समझ में आनी चाहिए। वो आज का आज 5:30 बजे से बिजनेस चालू कर देगा। फिर से पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को विश्वास है? अरे बाप रे, बहुत सारे लोगों को है। ईसा मसीह के पास कोई जाता था, बाइबल के अंदर एक छोटी सी कहानी आती है। जब ईसा मसीह के पास कोई जाता था, बोले मेरे को आँख नहीं है, मेरा हाथ में तो मैं ठीक हो जाएगा। बोले तुमको विश्वास है क्या? मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन तुमको विश्वास है क्या? बोले हाँ है विश्वास। तो बोले बस तुम्हारा विश्वास काम करे, आज तुम्हारा विश्वास काम करने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे बताया गया है कि मैम बता रहे थे कि बहुत सिंसियर बच्चे हैं और मैनेजमेंट के स्टूडेंट है सबके सब। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको कोई बड़ी डिग्री की या कुछ बहुत बड़ी चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप अभी जहाँ पर हो ना, कैशिफाई कौन है मालिक अपने को पता नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है आपने बता दिया कि उन्होंने देखा एक नीड कि मोबाइल महंगे होते जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये ई कचरा जो होता है ना, ई कचरा या ई वेस्टेज जो चल रहा है, इसका सोल्यूशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 32 पॉइंट्स निकाले। कोई भी अगर मोबाइल आप बेचने जाएंगे, 32 पॉइंट्स उन्होंने निकाला और 32 पॉइंट वो चेक करते हैं कि ये इसका बॉक्स है क्या है, और किसके नाम पर है, दिनेश गुप्ता के नाम पर है, इसका माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है क्या, हाँ हेडफोन काम कर रहा है क्या, इसका चार्जर काम कर रहा है क्या। उन्होंने ऐसे 32 पॉइंट्स बनाए और बिजनेस चालू कर दिया। और आज से ही आप स्टूडेंट हैं, बहुत सारी कंपनी स्टूडेंट में ही चालू हुई थी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ओयो। क्या करती है ओयो? कितने होटल है खुद के? ओयो के होटल कितने खुद के? ओयो का नाम सुना है किसी ने? यस। सुना है ना ओयो? अग्रवाल साहब की कंपनी है। एक भी होटल नहीं उनका, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया, बस हो गया। कोई जरूरत नहीं, आप किसके लड़के हैं, आपके मम्मी डैडी क्या करते हैं, कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करने वाले वो इम्पोर्टेंट। मैंने पहला बिजनेस चालू किया, फेल हो गया। दूसरा बिजनेस चालू किया, फेल हो गया। तीसरा बिजनेस चालू किया, फेल हो गया। चौथा बिजनेस चालू किया, फेल हो गया। फेल ही हो रहा था। बिजनेस फेल होने की तो प्रक्रिया है, लेकिन कहीं पर एक होगा ना, एक डॉट आपका लग जाता है। 2019 में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था, वहाँ से मैंने रिजाइन दिया, जो आज तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। आज तक मैं उसी कॉलेज में एम्प्लॉय भी हूँ। अगर आप AICTE के साइट पर जाओगे ना, दिनेश गुप्ता डालोगे, तो मैं उसी कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तो उन्होंने मुझे निकाला भी नहीं और रिजाइन भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन 2019 में नवंबर 2019 को मेरी कंपनी चालू हुई, जो देश की 4थे नंबर की कंपनी बन गई। देश की 4th रैंक की कंपनी बन गई है। तो जो 136 करोड़ लोगों की आबादी है, ये देश में 136 करोड़ की आबादी है और उसके अंदर 4th रैंक की कंपनी, वो भी कल्याण जैसे, बेतुकर पाड़ा जैसे एरिया में। कोई ऐसे मलाबार हिल या रेवेंसी रोड की बात ही नहीं हो रही है। कल्याण में बेतुकर पाड़ा, अगर काला तालाब का नाम सुना होगा, काला तालाब के उस तरफ ही है, नौकरी कंपनी चलता है छोटा सा। वो कंपनी हमारी पहली कंपनी थी, ये कंपनी कैसे बनी और इसमें क्या है। आज एक कंपनी नहीं, आज अपनी 7 कंपनी चल रही है। यहाँ पर तो केवल रूटीन का ही नाम लिया गया, लेकिन 7 कंपनी चल रही है। और बस ये सिस्टम अगर आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 बस खत्म।
बस इतने ही समझना है और कुछ नहीं समझना है, इससे ज़्यादा भी नहीं समझना है, कम भी नहीं समझना है। ये 5 चीज़ें आपके पास होना चाहिए। जैसे बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी पावर होता है, एक पचन क्रिया होती है और एक श्वसन क्रिया होती है। इससे हमारा बॉडी चलता है। एक पर्सन को जब हाथ काटा गया, बोले कुछ फर्क पड़ा क्या? बोले नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर दूसरा हाथ भी काटा गया, पैर भी काट दिया गया, इतना काटा गया कि वो इतने दिख रहा था। उसको पूछा गया कुछ फर्क पड़ा? बोले नहीं, मैं तो जिंदा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, हाथ पता नहीं किधर गया, पैर किधर गया मालूम नहीं है, वो इतना ही बड़ा था, इतना ही बड़ा था। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, इतना ही बड़ा था। मेन था कि उसका ब्रेन काम कर रहा था और यही इसी को ट्रेनिंग हमें देना है। एक लड़का था, बहुत मायूस होते वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाता है ऑफिस बॉय का नौकरी के लिए। किसके लिए? ऑफिस बॉय का नौकरी के लिए जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बिल गेट्स का। फॉर्म भरता है, इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू में पास हो जाता है। बोले हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल कर देंगे। तो बोले साहब मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, आप इतनी बड़ी कंपनी में आए हो और आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है? बोले साहब नहीं है मेरे पास, उसको निकाल देते। ईमेल एड्रेस नहीं था उसके पास, उसको निकाल दिया गया। फिर वो बेचारा मार्केट में जाता है, सब्जी मार्केट में जाता है, फूल बाजार में जाता है, वहाँ से सफरचंद खरीदता, घर पे आ रहा था। किसी ने उसको रोका, बोले साहब ये सफरचंद कितने का है? उसके दिमाग में कुछ बात आई, वो बोलने जा रहा था कि मेरे लिए, लेकिन बोला ये 25 रुपये का है। उसने लिया था 20 रुपीज़ में, बोले 25 रुपये का है। बोले यार मुझे दे दो, अभी मैं मार्केट में जाऊँगा, बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे दे दो, मैं खरीद देता हूँ। 20 रुपये का उसने कितने में बेचा? 25 रुपीज़ में बेच दिया। और फिर उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अरे अपन कैसे करूँ सकते हो। जिस दिन आप पहला प्रॉफिट कमाओगे ना, किसी का बिजनेस है यहाँ पर, किसी का बिजनेस है, आपका है, कैसा लगा था जब पहला प्रॉफिट आपने कमाया था? रात को नींद आई थी क्या उस दिन आपको? भले ही आपने 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 1 लाख रुपया कमाया, लेकिन उस दिन रात को नींद नहीं आएगी आपको। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपका कोई तो भी एक टेक्निकल या आपका ब्रेन का आपने यूज करके वो पैसा कमाया, और उस दिन नींद नहीं आती है तो आपको अनुभव मिलेगा। उसको नींद नहीं आई और उसने फिर सवेरे दिमाग लगाया, फिर उसने ऐसे साइकिल पर जाके कुछ सामान लेकर आया, फिर उसके बाद उसने ऑटो में जाके सामान लेकर आया, ट्रक में जाके सामान लेके आया, और वो उस सब्जी मार्केट का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है, उस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। और शहर का सबसे बड़ा आदमी बनता है तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आते हैं। बोले साहब आपका इंटरव्यू लेना है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद फिर वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो रहता है, पत्रकार रहता है, रिपोर्टर रहता है, वो कहता है साहब मैं आपको ईमेल कर दूंगा, मुझे आपका ईमेल एड्रेस दे दीजिए। फिर क्या कहता है वो? मेरे पास तो ईमेल एड्रेस नहीं है, मेरे पास तो, मैं वो क्या कहता है, मेरे पास तो ईमेल एड्रेस ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं। तो फिर वो हैरान हो जाता है कि बिना ईमेल एड्रेस के आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतना फेमस आप हो गए, आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं और आप इतने बड़े कंपनी कैसे बनाए? अगर आपके पास ईमेल एड्रेस होता तो आप क्या करते? अगर आपके पास ईमेल एड्रेस होता तो क्या करते हैं? क्या जवाब दिया उसने? क्या जवाब दिया होगा? अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस होता तो मैं क्या करता? आप कहानी समझे आपने? तो रिपोर्टर पूछता है आपने बिना ईमेल एड्रेस का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, अगर ईमेल एड्रेस होता तो क्या करते? मैं ऑफिस बॉय का काम करता। कभी कभी कुछ चीजें हमारे पास नहीं है ना, अच्छी बात है। अच्छा हो गया हम लोग रतन टाटा के घर में पैदा नहीं हुए, अच्छा हो गया हम लोग अमिताभ बच्चन के घर में पैदा नहीं हुए, अच्छा हो गया हम लोग मलाबार हिल में पैदा नहीं हुए, अच्छा हो गया हम लोग कल्याण में एक छोटे से घर में पैदा हो गए। अब हमें मौका मिला है, अब हमें मौका मिला है कुछ करने का। किसी भी देश की तरक्की वहाँ के इम्प्लाई से नहीं, इम्प्लाई देने वालों से नापी जाती है। आज अमेरिका इतना आगे क्यों बढ़ा है? उसका एक ही कारण है, वहाँ पर स्टार्टअप करने वाले की संख्या बढ़ी। और स्टार्टअप मतलब क्या होता है? किसी भी नई चीज को देखना, जो लोग नहीं देख रहे वो चीज को देखना और स्टार्ट कर देना। बस जो लोग नहीं देख रहे, केशिफ भाई ने उस चीज को देखा, कोई भी नहीं देख रहा। लोग जाते हैं सेकेंड हैंड मोबाइल कैसे खरीदते हैं, दुकान में जाते हैं, अरे मोबाइल है क्या? बोलता है ना, मोबाइल है क्या? हाँ है ना, कितने का है? फिर वो बोलता है 5000 रुपये का। लेकिन उसको आप ट्रस्ट कैसे करेंगे? आप ट्रस्ट कैसे करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 चीज हर बिजनेसमैन के पास होना चाहिए, कमिटमेंट। घर वाले बोले इतना बारिश हो रहा है, किधर जा रहे हैं आप? जाने दो ना, किधर मालूम पड़ेगा ऐसी बस में, बच्चों को थोड़ी पता चलेगा। लेकिन बोले मुझे तो मालूम है ना, मुझे तो मालूम है 4 बजे जब निकला तो बहुत बारिश हो रही थी। घर वाले बोलते क्या क्यों जा रहे हैं? जाने दो ना, बैठो नहीं कर। एक बच्चे का जन्मदिन है यार, बच्चे का जन्मदिन मनाओ। नहीं, पहला है कमिटमेंट और दूसरा है सर्विस। ये 2 चीज़ अगर आपने दे दिया फिर खत्म।
फिर कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बिजनेस का सबसे पहला जो आता है, एक ट्रायंगुलर है, ये एक ट्रायंगल है, सबसे टॉप पर आता है प्रोडक्ट। आज आपको एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, कुछ भी। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ केमिकल के ऊपर, कैप्सूल हम लोग बना रहे हैं। अगर वो कैप्सूल आप लेंगे और उस कैप्सूल को अगर पानी में, किसी भी पानी के बोतल में डालेंगे, उस कैप्सूल को पानी के बोतल में डालना है, पानी गर्म हो जाएगा। कैप्सूल लेना है, इसको पानी के बोतल में डालना है, पानी गर्म हो जाएगा। क्या होगा इससे? मैगी बनाने का है, चाय बनाने का है, ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। सिर्फ वो कैप्सूल पे काम मैंने किया भी था, लेकिन अभी वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उस पर आप सेफ्टी कैसे बनेगा उस पर काम कर रहे हैं। एक कैप्सूल लेना, पानी में डाला, पानी गर्म हो गया था। आप उनके लिए नहीं, सामान्य आदमी के लिए नहीं। मैं सोच रहा हूँ जो बीएसएफ में जो काम करते हैं, जो ठंडी कश्मीर में जो बैठे हुए हैं, जो लद्दाख में बैठे हुए हैं, जो ठंडी में ठिठुर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? बस एक आइडिया ढूंढना है आपको। सबसे पहले एक आइडिया और एक सर्विस। या तो आइडिया ढूंढिए या तो सर्विस ढूंढिए, या तो आइडिया या तो सर्विस। कैशिफाई कोई मोबाइल नहीं बना रहा, वो क्या कर रहा है, पुराने मोबाइल को ले रहा है और उसे रिफर्बिशिंग कर रहा है। उसे क्या कर रहा है, रिफर्बिशिंग कर रहा है, और वो रिफर्बिशिंग को क्या कर रहा है, बस बेच रहा है और प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है। आपसे लेता है 1900 रुपये में, दे रहा है 19,000 रुपये में। तो बोलते नहीं 40,000 का मोबाइल है, ये 40,000 का मोबाइल 19,000 में दे रहा है और ले रहा है कितने में, 1900 रुपये में। बोलता है देखो सर आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 32 पॉइंट्स है, 32 पॉइंट्स में से इतने पॉइंट आपके मोबाइल में नहीं है, तो उसका यही रेट होगा। खत्म, सिस्टम बना दिया है। आपको एक सर्विस या तो एक प्रोडक्ट बनाना है। अब ये बनेगा कैसे, प्रोडक्ट कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। फिर से मैं महात्मा गौतम बुद्ध की तरफ आता हूँ। अवेयरनेस, बस अवेयरनेस में आ जाइए, अवेयरनेस में आ जाइए। हम लोग बेहोशी में ही काम कर रहे हैं। हम मैक्सिमम एक बिजनेसमैन को अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। एक फिल्म है, वो मैं 100% बोलता हूँ आपको देखना है। फिल्म का नाम है मेड इन चाइना। मेड इन चाइना, इसमें देखा है रघु नाम का एक कैरेक्टर है, राजकुमार राव जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उस फिल्म के लिए मिला है। लेकिन वो फिल्म एक ऐसी फिल्म है कि जिनको भी स्टार्टअप करना है, जिनको भी नया बिजनेस करना है, एक बार जाके वो पिक्चर को आप देखिए। और मराठी में एक मूवी है मसाला, प्रवीण आचार्य वालों ने वो पिक्चर बनाई है। और एक मराठी में मूवी है दे धक्का। किस तरह से इनोवेशन होता है। इनोवेशन के लिए बस आपको अवेयरनेस में रहना है कि हमारे कॉलेज में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कॉलेज में ना फूड का एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक ऐसा फूड बनाया जाए जो हेल्थी भी हो। अभी हमारे यहाँ पर दूसरे कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं, तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में हम लोग क्या अपना योगदान दे सकते हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम लोग ब्रांडिंग के लिए कुछ कर सकें? अगर हमारे कॉलेज का ब्रांडिंग करना है तो यहाँ पर भी आपको बिजनेस मिलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था, हमारे देश में कितना बिजनेस चलता है? कौन बताएगा? एक अंदाजन बताइए, मैम बताइए, अंदाजन बताइए कितना बिजनेस चलता है? एक अंदाजन कीजिए असल बिजनेस, एक उसको टेक वाला। हाँ, 27, 100। और कोई कितने बिजनेस चलते हैं? यस आप, हाँ आप ही कितने बिजनेस चलते हैं? फेक दो ना उसको भी, एक डाल दो, आंकड़ा डाल दो। 100%। सेकेंड नंबर जो रूल था कितना, कौन सा था? 100%। गिव योर 100%। कितना बिजनेस चलता है हमारे देश में? 30,000। अरे वाह, बताइए आप बताइए। 3.5 करोड़ कितना बिजनेस है हमारे देश में? अपने को तो क्या मालूम है, बड़ा पाव मालूम है, डी मार्ट मालूम है, किराना स्टोर मालूम है, कुल्फी वाला मालूम है, बस ये 4-5 मालूम नहीं। 3.5 करोड़ बिजनेस हमारे देश में चलते हैं। कितने? 3.5। और आपको कितना ढूंढना है? बस एक ही ढूंढना है। हमने 7 ढूंढा। और अभी भी मैं बोल के रखा हूँ, मेरे विजन बुक में लिखा हुआ है कि मरने के पहले 100 बिजनेस होना चाहिए। रतन टाटा साहब का 700 बिजनेस है, अपने को तो 700 भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन कम से कम ना, ज़्यादा नहीं। आपको बहुत छोटा ही मांगते हैं। मैं ज़्यादा नहीं मांगता, वो इतनी सी है दुआ। वो कौन सा शाहरुख खान का गाना था ना कि इतनी सी है दुआ, ए मेरे खुदा इतनी सी है दुआ, मैं ज़्यादा नहीं मांगता। सिर्फ 100 बिजनेस चालू करने का। ऑलरेडी 7 और 8वां प्रोजेक्ट भी हमारा अभी काम चल ही रहा है। आपको क्या करना है, केवल एक बिजनेस ढूंढना है। सबसे पहले बिजनेस ढूंढने के लिए आपको नीड फाइंड आउट करना है। कोई जरूरी नहीं है सर मैं तो इनोवेशन नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। गौतम अडानी नाम सुना आपने? कौन है वो?
रिचेस्ट पर्सन, लेकिन क्या क्या बेचता है, क्या क्या बेचता है, क्या खरीदता है? बहुत अच्छी बात उन्होंने, बहुत बढ़िया आपने सही कहा। ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड, थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड। यस, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट आदमी है, और वो कुछ बनाता नहीं है साहब, वो कुछ बनाता नहीं है। वो क्या करता है, 2 रुपए में खरीदता है और 4 रुपए में बेचता है, खत्म। ज़्यादा मगज नहीं लगाता। हम लोग तो इनोवेशन कर रहे हैं, हम लोग को रोटी बनाने का मशीन बना रहे हैं, लड्डू का मशीन बना रहे हैं, सोडा का मशीन बना रहे हैं। एक हमारी कंपनी है उस्सो ब्रांड का जूस हम लोग बनाते हैं, मैंगो जूस बनाते हैं, लीची जूस बनाते हैं, और पता नहीं क्या क्या चालू रहता है। अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमें लोन पास हुआ है, वो एरोटेट जो जीरा सोडा होता है ना, जीरा सोडा आता है, तो उसमें भी हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं, उसको भी नया चल रहा है जो अभी तक नहीं मिला है। अगर आपने कभी लाहौरी सोडा का नाम सुना होगा, दिल्ली साइड में बहुत चलता है, हमारे यहाँ पर पूरा ड्राई एरिया, यहाँ पर पता ही नहीं किसी को क्या होता है, बस जिसको पता नहीं है वही लाता हूँ। जब मैं जाता था कहीं ट्रिप पे जाता था, मैं देखता था कि हमारे कल्याण में चलेगा क्या ये, हाँ चलेगा, हमारे यहाँ चलेगा क्या, डोंबिवली के लोग लेंगे क्या, वो भिवंडी के लोग लेंगे क्या, हाँ लेंगे ना, हमारे पास वो है ही नहीं चीज़, और जो है ही नहीं वो लेके आ जाना, खत्म। तो आपको अवेयरनेस में रहना है, बिजनेस ढूंढने के लिए खुद का एनालाइज करना है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, ये तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तूने। आम्ही तर काय मराठी माणसे, तो क्या हुआ, मराठी माणूस काम नहीं कर सकता है क्या, ये बिझनेस नहीं डाल सकता है? आम्ही तर कसं आहे का, आम्ही म्हणजे असं आपल्याला काही जमत नहीं साहब, ये सब झूठ है। IRB कंपनी है, देश की बहुत बड़ी कंपनी में IRB का नाम आता है, डिप्लोमा इंजीनियर है, डोंबिवली का रहने वाला है। अभी तो मलाबार हिल में रहता है, वो मलबार हिल नेपल्सी रोड पे रहता है, लेकिन ये डोंबिवली का ही लड़का है। पॉलिटेक्निक, श्रीराम पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है। आप देखेंगे यहाँ से लेके अहमदाबाद तक पूरे रोड का कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिला, रोड का कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिला है। डोंबिवली कर, अभी डोंबिवली कर उसको मिला हुआ है, किया उसने, डेयरिंग किया, कुछ तो नया किया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, वो बटन वाला होगा ना। अच्छा, फिर तो आपके मोबाइल में एक ऐप्स होगा, इसको बोलते हैं एम इंडिकेटर। किसने बनाया वो एम इंडिकेटर? अपने को क्या करने गए, अपने को तो क्या है, बस अपने को तो व्हाट्सअप फेसबुक इंडिकेट नहीं। आज के बाद में बोल रहा ना, अवेयरनेस के साथ बस। तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट ढूंढना है। सचिन टेके नाम का एक लड़का था, 2009 में सचिन टेके नाम का एक लड़का था, दादर स्टेशन पे उसका एनलाइटन हुआ। उसने पूछा, अरे माझी एक गाड़ी ले ली। उसने क्या किया, एक अंकल को पूछा, अंकल इसके पास कौन सी गाड़ी है? उस अंकल ने एक बुक निकाला, और उस बुक में से उसने देखा, अरे हाँ आता कुठली होती कर्जत गेली ना, आता बदलापूर है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जो आज एम इंडिकेटर के रूप में जानते हैं, सचिन टेके, स्लम एरिया में रहने वाला, दहिसर के स्लम एरिया में रहने वाला लड़के ने दिमाग में लेकर आया, जिसका रिबिन काटा था। एम इंडिकेटर जब लॉन्च किया गया था, पीयूष गोयल साहब हमारे उस समय जो रेलवे मिनिस्टर थे, उनके हाथ से रिबिन काटा है। शुरुआत तो कीजिए, सबसे पहले अवेयरनेस में आ जाइए। काय लागणार है, इथे चहा लागणार है, बस खत्म। अमृत क्या है, अमृत तुल्य चहा येवले, नवनाथ येवले ने दिमाग में लेकर आया। जब पूरी दुनिया कोरोना में ग्रस्त थी, वहाँ पे 15 करोड़ रुपया उसने बना लिया। मैं बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूँ, 15 करोड़ सिर्फ फ्रेंचाइजी का है, बाकी तो उन्होंने एक ये नहीं किया है, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन कोरोना में 15 करोड़ उन्होंने कमा लिया। किसने? नवनाथ येवले ने। क्या करते हैं येवले साहब, क्या करते हैं? चाय। क्या करते हैं? हाँ, अमृत तुल्य चाह की जो शुरुआत है हमारे एक नया कल्ट चालू है, नया कल्चर चालू है हमारे यहाँ पे अमृत तुल्य। उसके बाद तो श्री आ गया, फिर वो पंडरीपुरी आ गया, पता नहीं कितने सारे लोग आ गए, लेकिन उन्होंने चालू किया। सबसे पहला प्रोडक्ट आपके दिमाग में एक प्रोडक्ट लेकर आया, नहीं ये प्रोडक्ट तो चलता है, कोई बात नहीं, नया क्या कर सकते, देखो ना नया कुछ कर सकते हैं क्या? एक ऐसा पेन हम लोग लॉन्च कर सकते हैं क्या? उस पेन के अंदर सेंट आएगा, ऑलरेडी है, कोई नया नहीं है, उसमें से सेंट निकलेगा, उसमें से टॉर्च निकलेगा, तो मोबाइल में है, लेकिन करो ना। एक ऐसा पेंसिल बना सकते हैं क्या? बच्चे लोग लिखेंगे और उसको फेंक देंगे और उसमें से पेंट निकलेगा। नहीं हो सकता है? हो सकता है। नटराज पेंसिल लेकर आओ, प्लास्टिक से उसको ऊपर ऐसा गोल गोल घुमाओ, टेप मारो, अंदर सीड डाल दो कोतमीर का, फिर वो अलग अलग जो भी सीड मिलता है बाजार में से लाके डाल दो और पैक करके बेचो। एक राखी है, जो हाथ में राखी बांधते हैं, एक कंपनी ने बनाया था, मुझे उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया उन्होंने, माय बिजनेस कुछ नाम से है। उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को राखी बांधा था। वो दूसरे दिन राखी लोग क्या करते हैं,
राखी बांधने के दिन तो ठीक है, आप जी बहना, हमारी बहन, प्यारी बहना, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है पता आपको? दूसरे दिन उसकी जगह कहाँ पर रहती है उस राखी की? इतना मेहनत करके लोग बनाते हैं, दूसरे दिन वो राखी कहीं चला जाता है, कहीं लोग फेंक देते हैं या कहीं रख देते हैं, गायब हो जाता है। अगर उस राखी के अंदर एक सीड डाल देंगे तो क्या होगा, और उसको गमले में डाल देंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिकली आप अच्छा काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटली अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सारा वेस्टेज होने से अच्छा उस राखी को अगर एक गमले में डाल दिया जाता है और वहाँ से पेड़ उगता है, उसमें से सूरजमुखी निकलता है, गुलाब का फूल निकलता है, तो सोचिए क्या होगा। लेकिन क्या हम इतना सोचते नहीं साहब, क्यों? क्योंकि हम लोग उलझे हुए हैं सब। और किसमें उलझे हैं? किसमें उलझे? व्हाट्सअप नाम का कोई एक यंत्र क्या है, जो भी है मार्केट में कुछ चीज आया हुआ है, व्हाट्सएप में उलझे हुए हैं, फेसबुक में उलझे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। और जहाँ पर बेचने के लिए कुछ नहीं ना, वहाँ पे आप प्रोडक्ट, आप वहाँ पे प्रोडक्ट। आपको एक सीक्रेट बताओ कि बिजनेस का, कितने दिन को सुनना है बिजनेस का एक सीक्रेट, अगर ये समझ में आ गया तो अभी आपका बिजनेस इसी वक्त चालू हो जाएगा। यादव सर, इसी वक्त, फ्रॉम दिस मोमेंट आपका इस बिजनेस चालू हो जाएगा। सीक्रेट ये है, आपका मार्केट तैयार है, आप तैयार नहीं हो। फिर से बोलूं, आपका मार्केट, आप जो भी बनाना चाहते हैं, कुछ भी लड्डू है, चपाती है, पूरन पूरी है, कुछ भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो चीज बनाना चाहते हो आप बनाइए, क्योंकि आपका मार्केट तैयार हो गया है। और किसने तैयार किया आपका मार्केट? आपका मार्केट किसने तैयार किया? किसने तैयार किया आपका मार्केट? किसने तैयार किया? फिर से अवेयरनेस में आ जाओ। मन कहाँ पर होता है? मैंने एक बच्चे को पूछा मन कहाँ पर होता है, बोले सर मैं हाथ ऊपर किया, बोले मैं बताऊँ क्या नाम बताऊँ, बोले जहाँ पर होना चाहिए उधर ही नहीं। मन को जहाँ पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता। प्लीज कुछ देर के लिए मन को वो भागेगा, वो ये सब चीज उसको पसंद नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप ला दिए तो आज ही से आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। कोई बात नहीं, फेल हो जाए प्रॉफिट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन चालू तो हो जाएगा। आज से ही आप किसी को मिलेंगे, हाँ माझा पण बिजनेस आहे बघा माझा कार्ड, अच्छा आपका कार्ड, हाँ मेरा भी बिजनेस है बाबा, मेरे एज पर मत जाइए, मेरे हाइट पर मत जाइए, मेरा भी खुद का बिजनेस है। आज आपको बनाना है, आपका मार्केट तैयार है, फेसबुक ने आपका मार्केट बना के रख दिया है, बस आपको क्या करना है, पोस्ट बनाना है। अच्छा कैनवा आता है किसी को चलाना? कैनवा आपको आता है, बाकी लोगों को क्यों नहीं आता है? ये तो आना ही चाहिए, ये एसेंशियल स्किल है जो हर एक के पास होना चाहिए। मोबाइल सबके पास है ना? है, आपके पास है मोबाइल? है, कौन सा मोबाइल? सैमसंग, अच्छा चलो ठीक है, वीवो, जो भी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। आपके पास एप्पल होने दो, कुछ भी होने दो, बस एंड्रॉइड फोन होना चाहिए या iOS होना चाहिए। आपको कैनवा जो है आज डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके थोड़ा सीखिए, अपना फोटो डालिए, नीचे कंपनी का नाम डालिए, नीचे आपका पोजीशन डालिए और आपका प्रोडक्ट का फोटो डालिए, बस। और कुछ नहीं ना बेचने के लिए तो पुराना किताब बेचो। एक चैलेंज लेंगे आप लोग, मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ 30 दिन के लिए, लेंगे? कितने लोग लेंगे जरा देखो, एक फोटो निकालेंगे सबका, बाद में मुझे मेल करेंगे, बाकी लोग नहीं लेंगे क्या? अरे हाथ में उठाओ, मेरे लिए उठा दो। हाँ चलो, सब लोग चैलेंज ले रहे हैं। आज के बाद से फ्रॉम टुडे से, आज के बाद से आपको क्या करना है, रोज एक ना सुनना है, रोज एक ना सुनना है, ना यानी रिजेक्ट। लोगों ने आपको रिजेक्ट करना चाहिए। किसी के पास जाओ, अंकल मुझे 5000 रुपया चाहिए, किसी भी अननोन आदमी के पास, सिक्योरिटी के पास जाइए, अंकल बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, मुझे 5000 रुपया चाहिए, वो क्या बोलेगा? रुक जरा, अभी डंडा लेके बस। आप ना सुनने का आदत डालिए। हमको रोकता कौन है मालूम है? हमको कौन रोक रहा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। फिर से एक आपको कोट बता रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सबसे पहले शिक्षित हो जाइए, जो अभी हो रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, फिर क्या होना है, संगठित होना है, और लास्ट में होना है संघर्ष करना है। लेकिन किसके साथ करना है? उस समय तो अंग्रेज के साथ कर रहे थे, आज किसके साथ करना है भाई? आप तो अंग्रेज भी नहीं है, अब किसके साथ करना है? आपको सब कुछ, सब लोग इक्वलिटी हो गया, अब किसके साथ संघर्ष करना है? अब संघर्ष करना है हमारे अंदर के विकारों के साथ। हमारे अंदर कोई लेजीनेस आ गया है, हमको लगता है वो मुझे देख रहा है, वो क्या सोचेगा, इतना बड़ा आदमी, अरे कोई नहीं अपने को पहचानता है। मैंने इसलिए आपको पूछा, आपने कभी देखा है मुझे कभी माल लेके जाते हुए रिक्शे में ऐसा कंधे पे उठाते हुए नहीं देखा था? अच्छी बात है, अगली बार भी देखना तो नहीं, ऐसी एक आदमी आया था, शायद कोई और है, ऐसी समझ लेना।
हाँ, उधर ऐसा मेरा इंसल्ट मत करना, क्योंकि कभी कभी आदमी लोग आते नहीं तो मुझे ही माल उठा के लेके जाना पड़ता है, रिक्शे में बोलो, साइकिल में बोलो, स्कूटर पे बोलो, जहाँ पर भी मिलता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेसमैन नहीं होता, उसको सब काम करने पड़ते हैं, उसको गाली भी सुनना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है, एक बार तो मार भी खाते खाते सकते हैं, होता है सबकी लाइफ में, सब आते हैं। आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उसको ढूंढना है और उस पर काम करना है, और उस प्रोडक्ट को कुछ नया इनोवेशन लेकर आना है। साबुन है, साबुन तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन आप लोग एक साबुन बना सकते हैं, आइडिया देकर जा रहा हूँ, मैन प्रीमियम साबुन है, साधारण साबुन है, बनाइए ना। औरत लोगों के लिए बहुत सारे साबुन है, लेडीज लोगों के लिए, जेंट्स के लिए है क्या कुछ? हाँ, बनाइए ना मैन प्रीमियम साबुन, सेम कंटेंट रहेगा, सेम कंटेंट रहेगा, ये क्रीम की जगह ब्लू लगा दीजिएगा बस, या कोई दूसरा कलर डाल दीजिएगा, बस हो गया, पैकिंग करके बेचिएगा। आपको बेचना पहले सीखना पड़ेगा, तो सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस। आज आपने एक चैलेंज दिया है, चैलेंज क्या है, 30 दिन तक आपको ना सुनना है और मैम को आपको मैसेज करना है कि मैम मैं आज एक कंडक्टर के पास गया, मैंने बोला अंकल मैं घंटी बाजू का, उसने मेरे को बोला हाँ, बस अपने को यही सुनने का था, सर थैंक यू वेरी मच। बाद में बताओ एक्चुअली क्या, हमारे इधर एक सर आए थे, उन्होंने हमें एक चैलेंज दिया था ना सुनने का। अगर आप मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, कोई यहाँ गूगल फिगर पे नहीं मिलेगा साहब, कोई गूगल पे नहीं मिलेगा। मैं भी वीडियो में बनाया, ये आज का कंटेंट पूरा नया है, कोई पीपीटी नहीं, कुछ नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई अपना यूनिफॉर्म नहीं, कुछ नहीं, कोई टाई नहीं, कोई कोट नहीं, ऐसे तो मैं जल्दी आता नहीं, लेकिन आज मैं तो अपने घर के बाजू में तो चलते ना, मैं कल आ जाएगी मुझे। क्लियर हो गया? तो आज के बाद से आप लोग को ना सुनने का आदत डालिए, आपका ईगो हर्ट होना चाहिए और बहुत जबरदस्त होना चाहिए, उसको मरा मुर्दा होना चाहिए, जब तक 30 दिन के बाद आप स्ट्रॉन्ग कर जाएं। लोगों ने आपको ना बोलना चाहिए, अंकल वो आपका कोट मिलेगा क्या मेरे को? मेरा कोट से क्या लेना है? अंकल जो वो चेयर पे बैठो क्या, मेरे को भी जरा देखने का, गाड़ी सीखने का चलाने का, देखिए उससे सिर्फ ना बोलना चाहिए। अंकल हमें ना अचीवर्स कॉलेज से आया हूँ और हमारे को ना स्पॉन्सरशिप चाहिए, मिलेगा क्या? बस वो ना बोल दिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, उसको थैंक यू बोल के आना है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपके बिजनेस में क्या होना चाहिए? ना होना चाहिए, तो चैलेंज है आपके बिजनेस में प्रोडक्ट और एक अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप इसको लिख के रखेंगे कहीं तो अच्छा रहेगा। मलाला यूसुफजई का नाम किसी ने सुना? मलाला यूसुफजई का नाम सुना? यस, आपने सुना है? और मलाला यूसुफजई नहीं सुना? मलाला यूसुफजई आप सुन रहे हैं? मलाला यूसुफजई जो है दुनिया की सबसे छोटी नोबेल पुरस्कार लेने वाली बच्ची है, और जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अगर आपके पास एक पेन है, पेन है किसके पास? आपके पास नहीं है? अच्छा, अगर तो आप दुनिया नहीं बदल सकते। अगर आपके पास एक पेन है, अगर आपके पास एक डायरी है, एक पेन एक डायरी, अगर आपके पास एक टीचर है और आप स्टूडेंट बनने को तैयार है, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। चार चीज आपके पास है। कई साल मेरे पास मोबाइल नहीं है, अच्छी बात है, फिर तो और अच्छी बात है। मोबाइल नहीं है तो और अच्छी बात है, लेंगे तो एप्पल का ही लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये चार चीज आपके पास होनी चाहिए। है आपके पास? तो उसका यूज कीजिएगा। आपके पास पेन है, आपके पास डायरी है, टीचर है आपके पास, और आप स्टूडेंट बनने को तैयार है, बस यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आता है एक प्रोडक्ट, एक सर्विस को ढूंढ के निकालिए। बहुत सारे सर्विस है साहब। प्ले स्कूल, मालूम है आपको कोरोना के बाद सबसे ज्यादा प्ले स्कूल, क्योंकि कोरोना में आबादी थोड़ी बढ़ गई और इस आबादी का हमें क्या करना है, सही उपयोग करना है। कोरोना के बाद थोड़ा सा पॉपुलेशन पता नहीं थोड़ा सा बढ़ गया, अब उसको क्या करना है, सही चैनलाइज करना है, हमें प्ले स्कूल बनाना है, एक प्ले स्कूल बनाना है। अच्छा, प्ले स्कूल बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? बस एक जगह चाहिए साहब, एक जगह चाहिए हमें, एक जगह आपको चाहिए। आप घर में रहते उधर ही चालू कीजिएगा, 4 बच्चों से चालू कीजिएगा, देखिए क्या होता है। कीजिए ना। नहीं साहब मेरे पास तो डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो क्या है, मेरे को खुलने को तकलीफ है, कोई बात नहीं। आपके पास जो तकलीफ है ना, वही आपका स्ट्रेस, जो आपको नहीं आता ना, वही आपका स्ट्रेस। करेंगे कुछ भी, तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, आपके मोबाइल के स्टेटस पे क्या रहता है, क्या रहता है स्टेटस पे, हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, क्या रहता है स्टेटस पे? मोबाइल का स्टेटस मालूम है आपको? मोबाइल पे स्टेटस होता है, पता है? उसमें हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, क्या रहता है उसमें? जिसने मेरा वक्त देखकर मुझे किया इनकार, मुझे लेने आना पड़ेगा वक्त देखकर, पता नहीं लोग क्या क्या लिखते हैं। ये दुनिया के ट्रैफिक मेरे काम की नहीं, अगर मुझे भी लिखते रहते, फालतू की लिखते रहते। आज के बाद से केवल आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए,
आप जब काम करने वाले हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, मेरा स्टेटस आप कभी देखिएगा, हम लोग भी डालते हैं, हम लोग भी थोड़ा एंटरटेनमेंट डालते हैं, थोड़े पॉजिटिव डालेंगे, जो भी डालेंगे पॉजिटिव 3 या 4 ही डालेंगे, ज़्यादा डालना नहीं है, लेकिन अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में। सुधीर टाठे नाम का मेरा एक दोस्त है, जिनकी कैबिन में मेरे द्वारा लिखी गई कविता है। उन्होंने मुझे 24,000 रुपये दिया था उस कविता लिखने का। कितना? 24,000 रुपये उस कविता लिखने का मुझे दिया था। और उस कविता, और वो क्या करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम किया। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा कोरोना में एक चीज़ की जरूरत है, नर्सिंग की, नर्स की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, ऑफिस बॉय की जरूरत है, जो हॉस्पिटल में बॉय की जरूरत है, फिर उसके वार्ड बॉय की जरूरत है, उसमें वो ब्लड चेक करने आते हैं, डायबिटीज चेक करने आते हैं, वो स्टाफ की जरूरत है, वो स्टाफ सप्लाई करते हैं। उन्होंने घर से चालू किया था। आज खड़कपाड़ा में 5वें माले पर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पीछे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है खड़कपाड़ा में, उसके पीछे उनका पूरा फ्लोर उन्होंने ले लिया है और वहाँ पे बिजनेस चला रहा है। आपको देखना है कि क्या कर सकते हैं। कोरोना में हम ये नहीं बना सकते तो ये तो बना सकते हैं, हम मोबाइल नहीं बना सकते, हेडफोन तो बना सकते हैं। मेरा जो लड़का था, मैं उसको पूछता रहता हूँ कि अगर मैं तुमको पहला बिजनेस चालू करना तो बताओ क्या करोगे? मोबाइल पापा मैं हेडफोन बनाऊंगा। बोला अच्छा, तो इतने सारे तो हेडफोन हो गए, जितने लोग हैं उतने हेडफोन होंगे। यहीं पर आप देखेंगे सबके हेडफोन अलग मिलेंगे, किसी का बोट का रहेगा, किसी का JW का रहेगा, JBW का रहेगा, किसी का पता नहीं कौन सा रहेगा, किसी का कुछ ऐसे एंगल में रहेगा, किसी का कान के अंदर रहेगा, किसी का एयरपोर्ट का रहेगा, पता नहीं बहुत सारी कंपनी का है। तो मैंने पूछा आप क्या बनाओगे? बोले मैं एक ऐसा हेडफोन बनाऊंगा, कोई अगर सुन के चल रहा है, वो चल रहा है और पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया तो उसका हेडफोन बंद हो जाएगा। अंदर का जो इंटेंसिटी है वो बंद हो जाएगा बाहर के इंटेंसिटी से। बोला यार कहाँ से सीखा? बोले फिजिक्स में पढ़ा। बोला हम लोग भी थे, हम लोग को तो नहीं समझ में आया सब। बोले नहीं, मैं तभी मैंने सोच किया था, अभी उसका 91% कुछ ये कराया था वो 10 के अंदर। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है। नहीं हम लोग को वो जरदोस्ती वाला, हाँ चलेगा जरदोस्ती, हम लोग एक ऐसा, ये क्या बोलते हैं, एक ऐसा हम लोग प्लेटफॉर्म प्लेट बनाएंगे जिस पे हाथ रखेंगे मेहंदी बन जाएगी। टेंशन क्या है? ऐसा नहीं हो सकता, आज शायद नहीं हो सकता, लेकिन करेंगे तो होगा। एक ऐसा प्लेट रहेगा, बस आपको हाथ रखना है, जैसा डिजाइन के लिए आपने कट किया, ऐसा रख दिया, बस मेहंदी लग गया। आज शायद इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन है। जब मैं OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड चालू कर रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 11 साल मुझे लगा था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने के लिए। ये नहीं पता था भारत सरकार के किस डिपार्टमेंट में जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। ये था कि कुछ तो भी करना है, काइटरी करेक्ट। और उसी दिन यहाँ पर एक पिक्चर लगा था, पिक्चर का नाम था मेड इन चाइना। कौन सा? मेट्रो मॉल में गया था। रात के 11 बजे का शो में, रात को कभी जाता नहीं, हम लोग जाते ही रहता था। मैं रात के शो में गया, उसी इतनी बारिश हो रही थी, नॉर्मल में कोई बारिश होती है क्या? नहीं, लेकिन ऊपर वाले को बोलते ना कि उसको वो चाहता ही नहीं था कि मैं जाऊँ पिक्चर देखने। अगर उस दिन मैं नहीं गया तो शायद मैं आज यहाँ पर गया, फिर मैं कहीं तो भी होता, कुछ तो भी काम कर रहा होता, कहीं तो भी कंपनी में अपना चुपचाप नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैं वहाँ पर गया और बस यही बोला था कि आज बादलों ने हमसे साजिश की, आज बादलों ने हमसे साजिश की, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की। गर बादल को, गर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी तमन्ना है वही आशियाना। और निकलने के बाद वो पिक्चर जब देखकर आए, उसी दिन मेरी कंपनी बन गई। उसी दिन जब वो माइंडसेट हो गया था, पता चला कि लोग बड़े पोस्ट पे महिलाओं को क्यों रखते हैं। आपका जो CEO वो महिला क्यों होती है? बड़े बड़े आप देखेंगे ना, आप यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है, अगर आप लिफ्ट से बाहर आएंगे तो सामने फोटो लगा है, किरण मजूमदार साहब का फोटो है, तो आप देखेंगे बहुत सारे, मूवी इंद्रानी का फोटो लगा हुआ है। देखा आपने? किसी ने देखा? लिफ्ट के बाहर देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? हाँ यार, हम उसको आपने देखा? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लेना चाहते हैं, अपने कोई हासिल थोड़ी देख लेना, देखिए नहीं ना, ऑब्जर्व कीजिएगा। आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये गली में आ रहा हूँ, ये गली में मिठाई का दुकान चल रहा है, ये यहाँ पर चाय चले जाते हैं, यहाँ पर बच्चे लोग आते हैं, ये बच्चे लोग को अगर मैं हेल्थ टॉनिक बनाऊंगा तो यहाँ पे लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, यहाँ पे नारियल पानी का पाउडर बना के बेचूंगा तो अब करो ना। फेसबुक ने आपका मार्केट बना दिया है, आप लोग तैयार करिए। हम अभी भी कुछ और चीज़ों में उलझे हुए, किसी ने वीडियो बना दिया है तो उलझ गया उसी के अंदर, मेरा वीडियो बना दिया, इसलिए लोग ग्रो नहीं हो रहे। किसी को किसी ने कुछ बोल दिया, बचपन में बोला था तुम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो
हम लोग कुछ कर नहीं सकते तो क्या आपके भगवान है क्या? कोई बड़ा आदमी है क्या? सब ये सब निगेटिव है। एक आदमी ने नया घर लिया, एक आदमी ने नया घर लिया जर्मनी में, और उसने हांगकांग से एक आदमी को बुलाया। हांगकांग से एक आदमी आ रहा था, वो वास्तुशास्त्र को क्या बोलते हैं, फेंग शुई। फेंग शुई आदमी उसके घर पे जा रहा है उसको बताने के लिए। रास्ते में क्या हो रहा है, वो जो सेठ था, जो सेठ खुद लेने गया था उसको, उन्होंने एयरपोर्ट पे नाश्ता किया और नाश्ता करके बोले चलो सर मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे आपको फेंग शुई करना है, वास्तु करना है। बोले चलो साथ में चलते हैं। फिर जब चल रहा था देखा उसने बहुत आराम से गाड़ी चला रहा है, बहुत आराम से, और लोग उसको ओवरटेक कर रहे हैं। बोले लोग आपको ओवरटेक कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा है? बोले नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा है। बोले क्यों? मुझे इसलिए बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि शायद उनको मेरे से ज़्यादा अर्जेंसी है। बोले ठीक है। फिर आगे जा रहे थे, फिर एक गली में आ गए वो लोग। गली में आगे तो एक बच्चा भागते हुए चला गया, उसको जोर से ब्रेक मारा। फिर बोले अरे वो बच्चे को चिल्ला नहीं रहे थे, तो थोड़ा रुको ना आओ। फिर देखा दूसरा कोई बच्चा भागते हुए आया। बोले क्यों? तुमको मालूम है कि दो बच्चे यहाँ पर भाग रहे हैं? बोले नेचर है, एक बच्चा भाग रहा है इसका मतलब कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए मैं रुक गया। फिर वो आगे गया तो देखा तो कुछ बच्चे उसके गार्डन में वो तोड़ रहे थे, लीची तोड़ रहे थे। तो बोले यार तुम बच्चे को चिल्लाओ ना। बोले नहीं मैं चिल्लाऊंगा फिर कोई बच्चा गिर जाएगा, उसको कुछ लग जाएगा, तो थोड़ा रुक के जाते, उनको तोड़ने दो फिर बाद में चलेंगे। फिर उस वास्तुशास्त्र वाले ने कहा साहब वापिस चलो, मुझे छोड़ दो, मुझे हांगकांग जाना है। बोले क्यों? मेरे घर का वास्तु का। बोले जब आदमी ऐसा है कि उसका दिमाग ऐसा है, उसको क्या वास्तु की जरूरत है? वो गटर के ऊपर भी रहेगा ना, उधर भी सक्सेस होगा। वो कचर कुंडी पर भी रहेगा ना, उधर भी सक्सेस होगा। वो कहीं पर भी डाल दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन से जगह पे रहता है, वो भिवंडी में रहता है, वो समता नगर में रहता है, वो कोंगांव में रहता है, कोई लेना देना नहीं है साहब। आपका जिस दिन माइंड सेट हो गया ना, बस वहीं पे आप महल बना सकते हो, वही जगह पे जहाँ पे हमारा माइंड सेट। दूसरा जो है, आज आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, किसी का वो प्रोडक्ट डिसाइड, हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी से क्या करेंगे। अगर रतन टाटा आपके सामने आएगा, आप तो उसका बिजनेस करोगे। शहनवाज हुसैन का नाम सुना किसी ने? यस। किसने सुना है? आपने सुना? कौन है वो? एक्चुअली शहनवाज नहीं, शहनवाज क्या नाम है जो ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट बनाती है? शहनाज हुसैन का नाम किसी ने सुना? आप बताइए। शहनाज हुसैन एक प्रोडक्ट बनाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट रहता है, वो चेहरे पे लगाने से ग्लो आ जाता है। कुछ साल पहले ऐसी अमेरिका में मेरी के एश नाम की एक महिला थी, अफ्रीकन महिला थी, और वो किसी के घर पे बर्तन मांजती थी और उसको लगा अपना जिंदगी में ऐसे जाने वाला है, लेकिन उसके लाइफ में कोई तो भी आया और उसने बोला अब आपका माइंडसेट करना, कुछ तो भी नया ढूंढो। जैसे आज मैं आपके साथ आया हूँ, उसी तरह से उसके लाइफ में कोई आता है, उसको मोटिवेट करता है, और वो बर्तन मांजते मांजते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मेरी के एश। आप अमेरिका वो डाल के देखना साइड पे, अमेरिका के 100 सबसे इन्फ्लुएंसर में उसका नाम आता है मेरी के एश का। उसने भी शहनाज हुसैन के जैसा एक प्रोडक्ट बनाया। कोई भी पर्सन अगर वो चेहरे पे क्रीम लगाएगा तो ग्लो आ जाता है। और उसने ना अपना जो सिंबल है, उसका सिंबल क्या था? बम्बल बी। सिंबल क्या था उसका? हाँ, तो बम्बल बी क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा, मूंगा क्या बोलते हैं, घोड़ा होता है, मूंगा होता है, और बम्बल बी बोलते हैं उसको। तो लोगों ने बोला आपने ऐसा खड़ूस का फोटो क्यों डाला? तो काटता है, ये तो कान में जाके पूरा छेद कर देता है, इधर जाएगा तो इधर से बाहर आता है, इसका फोटो क्यों डाला? उसने बताया घोड़ा जो है ना, घोड़ा एक ऐसा इंसेक्ट है, एक ऐसा वो इंसेक्ट है, या एक ऐसा वो बोल सकते हैं कि वो जीव जंतु है, साइंस बोलता है वो उड़ नहीं सकता। एरोडायनामिक जो साइंस होता है ना, एरोडायनामिक साइंस क्या बोलता है? वो उड़ नहीं सकता क्योंकि उसका बॉडी बहुत बड़ा है और पंख बहुत छोटे हैं। तो पंख जो उसका कैलकुलेशन है ना, पंख का और बॉडी का कैलकुलेशन बहुत छोटा है, तो वो उड़ नहीं सकता है। अच्छी बात है कि भौरा को मालूम नहीं है कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ एज पर साइंस लॉ। अच्छी बात है ना। लेकिन हम लोग क्या है, इंसान क्या करता है? इंसान उसको पकड़ लेता है, क्या आता साइंस की सांगितलं आपण काय करू शकत नाही, म्हणजे आता आपण काहीच करू शकत नाही। नहीं साहब, ये गलत मान्यता हमारे दिमाग में आ गई, आज उसको तोड़ना है। अपने बिजनेस को लीगलाइजेशन कर दो। परसों के दिन हमारे बिजनेस को ट्रेडमार्क मिला, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। पहले हम टीएम लिखते थे, अब हम आर लिखते हैं। अब इसके बाद इंटरनेशनल पे हम जा रहे हैं। तो आपको लीगल करना है। अगर बिजनेस को लीगल करना है तो कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है बताइए? मैं पूरा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। कौन सा लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको सिर्फ महाराष्ट्र ई सेवा केंद्र में जाना है। आपके इधर ई सेवा केंद्र है? आपके इधर ई सेवा केंद्र नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सीएससी, अपना सीएससी सेंटर आपके इधर है?
कहाँ पर रहते आप? अच्छा, कल्याण ईस्ट में रहते हैं। आप किधर है? आपको क्या करना है, जाना है उधर, एक्चुअली फ्री में है, लेकिन वो 100 रुपया लेगा आपको, महाराष्ट्र ई सेवा केंद्र वाला। आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस और आपके लाइसेंस है। कितना अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अपने को क्या, हम लोग को उलझे हुए, अरे यार मेरे को ग्रुप से निकाल दिया उसने हम उसी में उलझे हुए, अरे यार मेरा वीडियो बना के डाल दिया, अरे डाले तो छोड़ो नहीं, बहुत हो गया, तो किया ना इतना नहीं खुला है, आप थोड़ा सीरियस हो गए। महात्मा गांधी सीरियस नहीं गए। 1892 में एक आदमी ने उसको धक्के मारकर फर्स्ट क्लास से उतार दिया, मोसबर्ग स्टेशन पे उनको उतार दिया गया। वो मोहनदास नाम का आदमी जो था, जिसकी माँ का नाम पुतली बाई और पिता का नाम करमचंद, और उस लड़के का ईगो हर्ट हो गया। पहली बार किसी ने उसको ऐसा धक्का मारा, क्योंकि आज तक किसी ने थोड़ा नहीं था, किसी ने ऐसा इंसल्ट नहीं किया था, और वो इंसल्ट किया गया आदमी ने फिर क्या किया आप देख सकते हैं। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। एक जगह लिखा था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। क्या लिखा था? इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो क्या किया उस आदमी ने क्या किया होगा बताइए, जिसके साथ ऐसा हुआ? उस आदमी ने क्या किया, खुन्नस लिया, लेकिन उधर वो मारते नहीं बैठा, उसके साथ लड़ाई नहीं किया, उसको साथ धक्का मुक्की नहीं किया, बोले कोई बात नहीं साहब, अब मैं जाऊंगा गेट ऑफ इंडिया के पास। गेट ऑफ इंडिया के पास जमीन खरीदा, शायद उसके पास पैसे कम थे, यहाँ वहाँ से जब पैसा उधार लेके उसने एक बिजनेस चालू किया, वहाँ पर एक होटल बनाया। होटल का नाम ताजमहल पैलेस। अभी हमने 20 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम वहीं पर हुआ था, 70 लोगों को लेके हमने प्रोग्राम किया था। हम लोग सोचते थे कब तक बाहर से फोटो निकालेंगे, कभी तो अंदर फोटो निकालना चाहिए ना। कभी सुनील शेट्टी और काफी लोग वहाँ पर आए थे हमारे। आप एक सपना देखिए साहब, बेतुरकरपाड़ा कल्याण काला तलाव का भी लड़का वहां तक पहुंच सकता है। बस इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो आपको क्या करना है, लीगल करना अपने बिजनेस को। महाराष्ट्र ई सेवा केंद्र में जाइए, बढ़िया सा नाम रखिए। मैंने एक को पूछा, अरे 1.5 साल हो गया तुमने कोर्स किया था, अभी क्या हुआ? बोले नहीं साहब मैं नाम ढूंढ रहा हूँ। अच्छा 1.5 साल तक नाम ही ढूंढ रहा है, रखो ना, गंगा राम, गंगा प्रसाद, जो भी आपको लगता है, CSA ABCD, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ABCD रखो, उसको शुरुआत करो। आपके नाम से ज्यादा आपका सर्विस इंपॉर्टेंट है। अभी वोडाफोन, हम लोग बोलते वोडाफोन मुझे क्या वोडा कुछ नहीं है, हम लोग महाराष्ट्र दिमाग को वही सोचेगा, लेकिन उसके दिमाग में थोड़ी था कि वोडाफोन को यहाँ पे वोडा बोलेगा तो लोग वड़ा पाव समझते हैं। तो आप और मेरे को पता है कि वोडाफोन बोलेगा तो वड़ा एक वड़ा और फोन, यानी कुंज बिहार का वड़ा और फोन, वो हम सोचते हैं। लेकिन वो लोग आप सोचते ना ना, दुनिया अपने भारत का नंबर 1 पे है, रिलायंस और वो अभी कॉम्पिटिशन में है। आपका बिजनेस को लीगलाइजेशन के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट है, आज से जब बिजनेस चालू करेंगे तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। और बिजनेस फेल इसीलिए होता है, लोगों के पास सिस्टम नहीं होता है। आप प्ले स्कूल चालू कीजिए, सिस्टम बनाइए, आप जो भी काम करेंगे सिस्टम बनाइए। यही फर्क है। एक मारवाड़ी भी जो है चाय बेचता है, आप जाएंगे बाहर, एक मारवाड़ी भी चाय बेच रहा है, और कई सालों से बेच रहा है। मेरे दोस्त है वही बेच रहे हैं चाय, लेकिन वो चाय बेच रहे हैं। आप जाइए वहाँ पे जरा ना एक चाय देना, कटिंग दिया, आपने 5 रुपये से निकल गया। लेकिन जब आप जाते हैं अमृत तुल्य में जाते हैं तो क्या होता है, ये बताएगा? आप अमृत तुल्य में जाते हैं तो क्या होता है? फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कीजिए क्या होता है। आप अमृत तुल्य में गए कभी? तुल्य में कभी चाय पिया आपने? हाँ, क्या करते पहले आप? हाँ, क्या नाम है आपका? मनीष के लिए तालियां होनी चाहिए। देखो ऐसा ऑब्जर्वेशन कीजिए। पहले आप क्या करते हैं, पर्स में हाथ डालते हैं, फिर वहाँ पे आप जो भी आपका नोट रहता है आप नोट निकालते हैं, और वो क्या देता है आपको, पहले एक कूपन देता है। अब ये कूपन से क्या हो रहा है, महाराष्ट्र राज्य के पास भी चला गया मैसेज कि यहाँ पर मनीष ने 10 रुपए का चाय किया, या 12 रुपये, अभी शायद 12 रुपये कर दिया, 10 रुपये का चाय किया। फिर उसके बाद GST भी आ गया, सब कुछ आ गया, उसमें जो भी तो अच्छी बात है, उसमें अटकना नहीं है। ऊपर आने से क्या हो गया, अब नवनाथ सर को यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं है। नवनाथ जी बैठते हैं क्या दुकान में? तो दमानी राधा कृष्ण दमानी बैठते हैं क्या डीमार्ट में? बैठते हैं? कभी देखा राधा कृष्ण दमानी को? वैसे ब्रांड है, कोई टकलू है, वो बैठते हैं क्या? नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते? सिस्टम। आपके बिजनेस में सिस्टम होना चाहिए, आपके बिजनेस में सिस्टम होना चाहिए, बनाइए। नहीं मैं तो टेलर हूँ, टेलरिंग में भी कर सकते हैं। नहीं मैं तो, हम लोग तो दूध बेचते हैं सर, आपको मालूम नहीं हम लोग का तो वड़ा पाव का धंधा है। मैंने किया ना, कुंज बिहार में जाके देखो, मैं 94 में गया था। अच्छा उसको नाम 94 में मैं गया था, मैंने पहली बार देखा था। वो उसका जो नीचे जो आदमी बैठा था वो गला खोलता था, ऊपर से कैमरा लाइट ऑन हो जाता था।
वो देखता था उसका सेट किसने मारा है, ओम प्रकाश गुप्ता, ये जो विकास बिल्डर है ना सामने, विकास बिल्डर उसी का ही है, विकास बिल्डर, महावीर टावर, महावीर टाइल्स उसी का ही है। तब मैं जब गया था, मैंने उस समय 7 रुपए का था, 20 रुपए का वड़ा पाव हो गया। तो जब वो गल्ला खोलता था ऊपर कैमरा का लाइट ऑन होता था, मैंने ऊपर से देखते थे। मेरे रिलेटिव हैं, उनका गन्ने का जूस का उन्होंने चालू किया, कोरोना में उनका बिजनेस थोड़ा ठप हो गया, सब कुछ ठप हो गया, तब उन्होंने गन्ने के जूस किया। वो गन्ने का जूस नहीं बनाते, कहीं पर भी मशीन खरीदते और कहीं पर भी लगा देते, वहाँ पे कैमरा लगा के और देखते रहते ग्लास कितना ठंडा हुआ। एक उनका अमिताभ बच्चन ग्लास है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना ग्लास कैसा होगा, इतना बड़ा ग्लास है, इतना बड़ा ग्लास 20 रुपए का। अभी उसका नाम ही अमिताभ बच्चन ग्लास ही रखते हैं उन्होंने, तो उसके लिए लोग गर्दी करते हैं वहाँ पर। आपके बिजनेस में सिस्टम होना चाहिए। मैकडोनल्ड में कभी गए आप लोग? आप गए? आप गए? क्या होता है मैकडोनल्ड में, आप जब जाते हैं तो आप बोलते हैं अरे अंकल एक जरा एक समोसा पाओ दो, ऐसा होता है क्या? नहीं, फिर क्या बोलते हैं उधर? हाँ, उधर भी पहले आप पहले उधर मस्त एक बढ़िया सा इंसान रहता है, वो गेट होता है वेलकम मैम, आपका वेलकम करते हैं, आप अंदर जाते हैं, आप उधर बोर्ड पे लिखा रहता है फैमिली पैक 400 रुपए का है, या 88 रुपए में वो ये है, उसके साथ कोक फ्री है, फिर उसके साथ 120 रुपए का है, उसके साथ वो फ्रेंच फ्राइज फ्री है। देखा आपने सब? फिर आप उसमें से डिसाइड करते हैं, आपका माइंड सेट करते हैं कि आपको 120 रुपए का लेना है। आप जाते हैं वहाँ पे पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद आपको परफेक्टली वो गोरी गोरी लड़की उधर एक मस्त बैठी रहती है, तो आप उसको देखते रहते हैं, वो पैसा दे देते हैं, और वो पैसा लेने के बाद फिर आपका उधर बिल बचता है 129। अगर आपका कूपन नंबर है तो वहाँ पे आता है, अभी हाँ 128 चल रहा है, आप तब तक वेट करते रहते हैं, 129 नंबर आता है, आप जाते हैं वहाँ पर भी गोरी लड़की रहती है, उसको आप देते हैं, उसको देखते ही रहते हैं, वो मस्त अपना आराम से काम करते रहती है, उसने ब्रेड दिया, ये दिया, और आपको हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ ओके थैंक यू, फिर उसको लेके आप चुपचाप खुद ही सब काम करना पड़ता है। ताजमहल में बना बनाया चाय नहीं मिलता है अमरूद लेके जैसा, वहाँ पे खुद ही सब लेना पड़ता है। मैं पिताजी को चाय पिला रहा था, बोला देखो ये गर्म पानी लिया, तो बोलते क्या रहते हैं आपको स्वतंत्र बना देगा, बोला आपने भी बनाना पड़ता है, ये 2000 रुपए का चाय बाबा, ये 2000 रुपए का चाय पी रहे, चांदी के कप में चाय पी रहे। आपको नहीं ऐसा सपना है कि अपने पिताजी को पप्पा को लेके जाना? कितने लोगों का सपना है? तो कीजिए ना भाई, कीजिए ना, पहला जो कमाई होगा ना उसमें लेके जाइए और जा सकते हैं। सचमुच में जब मेरे जैसा रूखा आदमी जा सकता है ना, तो आप लोग भी जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अपने सिस्टम लेकर आइए, अपने बिजनेस में एक सिस्टम लेकर आइए, अपने बिजनेस में सिस्टम, ये बहुत जरूरी है। आप कहीं पर भी काम करेंगे, आप जब इम्प्लाई करोगे ना, अगर आपको नौकरी भी करना पड़े तो आपको पहले सिस्टम में काम करना पड़ेगा, उस सिस्टम का एक हिस्सा बनना पड़ेगा। 4 नंबर पे आता है, मैम नहीं है क्योंकि जाने का होगा ना, आपको कुछ बोर तो नहीं हो रहा? 4 नंबर पे आता है कम्युनिकेशन। कहीं पर भी जाइए अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहिएगा। मैंने ना एक स्टार्टअप चालू किया है, हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग का बिजनेस चलता नहीं, हम उसके बिजनेस को ग्रो करते हैं। अच्छा, तो हर एक का ये प्रॉब्लम है, हर बिजनेसमैन का यही प्रॉब्लम है। डेंटिस्ट के पास जाओ, इधर मुखा डेंटिस्ट है, हमसे क्या है जरा तो जैसे क्या आता जरा बिजनेस थोड़ा डाउन कर रहे हैं। हम ही आए ना, एक कंपनी को जानता हूँ T2 टाइकून, हमारी कंपनी के लोग हेल्प करते हैं। वो 15-20 बच्चे हैं सर, वो 15-20 बच्चे हैं, वो कॉलेज के हैं, रुंडीकर सर भी जानते हैं उनको। वो 15-20 बच्चे ने एक कंपनी बनाई और वो सब क्या करते हैं, अटैक कर लेते हैं। आपके बिजनेस का रेटिंग बढ़ाना है, आपका गूगल पे रेटिंग बढ़ाना है, आपका प्रोफाइल को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, सीओ करना है, आपका कोई इवेंट है वहाँ पर जाके कुछ पार्टी विधि देना है, वो मेडल लेके आना, सब काम करते हैं। और आज वो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। हमसे ही चालू किया उन्होंने और बहुत जगह पे हमारे साथ रजा मुराद साहब के साथ एक प्रोग्राम था, उसमें भी उनको काम मिला था, कम से कम नहीं तो उनका भी 50-60 हज़ार का बिल बना था उनका। बच्चे ही छोटे बच्चे हैं। कम्युनिकेशन कीजिए, लोगों को बताइए। साहब मैंने एक बिजनेस चालू किया है, हमने वो स्पेशल बैग का कंपनी चालू किया है, हमने वो अम्ब्रेला बनाने का कंपनी चालू किया। हमारा अम्ब्रेला की खासियत है, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो बस आपको छोड़ना है, आपको चलना है और चलते रहिए, वो फॉलो करेगा। अरे क्या है, ये अम्ब्रेला बनाया है कि ड्रोन कैमरा बनाया है, ऐसा होना चाहिए। आज आपको लगेगा यार ये ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है। थोड़ा सा अपनी पंख दीजिएगा। डोरेमोन कोई देखता है क्या? अभी भी देखिए, अभी देखिए, अभी बच्चा बनते मत देखिए, ऐसे बिजनेसमैन बन के देखिए। आपको अगर आइडिया चाहिए ना, डोरेमोन में आइडिया मिलेगा। हेलीकॉप्टर वो किसे पता गैजेट निकालना, बिजनेस आइडिया घर से मिलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और देखिए आप जहाँ पे रहते हैं, हम लोग तो नेतोली में रहते हैं, नेतोली में भी बिजनेस हो सकता है।
सामने आके कुछ नया करो, बस उनके सामने कुछ नया करो। लेकिन हमको कोई तो भी रोक रहा है, हमारे अंदर अरे लोगों का टाइम बनता है, अरे कुछ नहीं, लोग आपको याद भी नहीं करते। मेरे इधर एक कुरियर वाला आया था बेचारा, मैडम मेरे इधर आपको लगता होगा मैं बहुत फेमस हूँ, कोई फेमस नहीं हूँ। मेरे इधर कुरियर वाला आया था, तो 2 घंटा परेशान था, दिनेश गुप्ता की तरह, दिनेश गुप्ता की तरह बचा, तो मिले ही नहीं है खड़ा के। तो सामने बुक स्टोर वाला उसको पूछ रहा है, बाजू में किराना स्टोर वाले को पूछ रहा है, दिनेश गुप्ता नहीं है, थोड़ी छूटे जाते। तब मेरे को एहसास हुआ, तब अपना ईगो अपना उधर हट हुआ। और अच्छी बात है, 100 जो मेरा था, मेरे 100 मेरे जो 100 थे ना, मैं 100 रखा था, तो 30 दिया हूँ, मैंने 100 बार रिजेक्ट हुआ, 100 बार मैं रिजेक्ट हुआ, तब जाके मैं मार्केटिंग स्किल सीखा। तो मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। आपको रोकने वाला यही पर बैठा हुआ है, बाहर कोई नहीं है साहब। अब कोई अफगानिस्तान से नहीं है, कोई कहीं से नहीं है, नेपाल से नहीं है, श्रीलंका से नहीं है साहब, यहीं पर बैठा हुआ है। अरे बहुत वक्त है, अरे लोग क्या बोलेंगे, इतना बड़ा आदमी का लड़का ये बेच रहा है, सोडा बेच रहा है, ऐसा चलता है क्या? चलता है साहब, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। वो हमने बना के रखा, हमने अपना खुद का फॉल्स इमेज बना के रखा। तो आज के बाद हमें क्या करना है, लोगों को बताना है। आप क्या करते बताइए ना, विजिटिंग कार्ड बनाना है, बनेगा विजिटिंग कार्ड? क्या करना चाहते हैं, क्या बनाओ? अगर बिजनेस करना तो क्या करोगे, क्या करोगे? कोई भी, हाँ शैम्पू का कीजिए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आपका मन में। मार्केट तैयार है, हम ही तैयार नहीं। लोग ना कुछ भी खरीदते हैं, देखिए ना, आप कभी 2 मिनट तक खड़े रहिएगा वहां पर जाके, वो मॉल में जाके खरीद, तो कुछ भी देखिए, कुछ भी लेके आते, कुछ भी लेके आते साहब, ये गोली है, टॉफी है, कुछ भी लेके आते। नहीं, वो मेरे बच्चे को ना बहुत पसंद है, पता नहीं, कुछ भी खरीद रहे हैं साहब, कुछ भी खरीद रहे हैं। लेकिन लोगों को बताते रहिए आप क्या करते हैं। और आखिरी में जो आता है कैश फ्लो। अगर बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है तो बिजनेस समाज सेवा बन जाता है। अगर इस कॉलेज में पैसा नहीं आएगा तो आपको क्या लगता है, कॉलेज चलेगा? ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे सारे इतने बड़े स्टाफ है, सबका पैसा देना पड़ता है, सबके घर, सबके अपने अपने नीड्स एंड नीड्स है सबके, वो कहाँ से आएंगे? वो इसी कॉलेज से आते हैं। तो आपके बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो नहीं रहेगा तो वो समाज सेवा बन जाता है। अपने बिजनेस में आपका सिस्टम होना चाहिए, पहले पैसे नंतर घेऊन जाए, तो उधार नहीं, आज उधार कल नहीं, आज नकद कल उधार। आपके बिजनेस में पैसा आना चाहिए तो ही लोग वैल्यू करेंगे। समझ में आएगा आपको? ये बिजनेस के आज इसे चालू कर दीजिएगा। और जाते जाते 2 पॉइंट उसमें ऐड करना चाहूँगा। आज अपने जो प्रोडक्ट है, अपना सर्विस है, उसमें रेनबो ज़ेब्रा बन जाओ। अच्छा, ये रेनबो ज़ेब्रा क्या होता है? ज़ेब्रा आपने देखा 2 रंग के होते हैं, कितने रंग के होते हैं? 2 रंग के होता है। लेकिन अगर एक ज़ेब्रा आपके सामने आता है, एक ज़ेब्रा अगर आपके सामने आता है, वो मल्टी कलर का है, तो आप क्या करोगे? उसके साथ सेल्फी निकालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। आमचं कल्याणमध्ये आम्ही बघितलं होतं, सतरंगी ज़ेब्रा होता, सब जगह बताएंगे, आपका ये कल्याण फेमस हो जाएगा। तो अपने प्रोडक्ट को बनाइए ना, अपने कॉलेज को बनाइए ना, अपने कॉलेज को, अपने प्रोडक्ट को, अपने फैमिली को, अपने नाम को बनाइए ना रेनबो ज़ेब्रा। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ, हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग वही तो कर रहे हैं, रेनबो ज़ेब्रा ही तो बना रहे हैं। हम लोग लोगों को वही तो दे रहे हैं, रिकॉर्ड बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक वैल्यू दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। और आखिरी में जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वैल्यू, वैल्यू और वैल्यू। आज के बाद से जो भी काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, बात करेंगे, उसमें वैल्यू बनना चाहिए। लोगों को वैल्यू दीजिएगा। देखिए लोग पैसे लेके खड़े हैं साहब आपको देने के लिए। मैं सच बताता हूँ, ये कोरोना विरोना किसके लिए था? गंदी विंदी किसके लिए? जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं है। बाकी तो क्रिएटिविटी बाकी मंदी है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, मंदी है ही नहीं साहब, मंदी है ही नहीं। ये सब हमारे दिमाग की सोच है, सब मगज के अंदर ही बैठा हुआ है। तो आज के बाद से वैल्यू, वैल्यू और वैल्यू दीजिए। देखिए आपका बिजनेस कैसे ग्रो होता है। थैंक यू वेरी मच। आपकी मेरी बात Thank you very much, sir, for sharing your view and idea with us. We are truly inspired by your talk. Now let me start with question and answer round. If you have any doubt or question, you are free to ask. Anybody? Any question? कोई सवाल? मनीष, मनीष, मनीष कोई सवाल? महेश।
सवाल है? क्या बात है, इतना पूरा दो चीज है, या तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ तो सवाल होगा, कुछ भी नहीं है दिमाग में, कुछ भी नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है। अभी तो घर पे जाने का है बाबा, अभी पूछूंगा, फिर ये 15 मिनट ले लेगा, ठीक है? क्योंकि मैं भी वहाँ पर रहा हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, तो मुझे भी पता है, ठीक है? कविता मैम, ये तो इनके दिमाग में अभी सवाल पूछेंगे तो 15 मिनट अजून घेणार आहे, थोड़ा घरी जायचं होतं, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन देखना आज के दिन को आप याद करो। मैंने तो कविता मैम को पता ही है, देखिए मैं सच बताता हूँ, एक ही मकसद है यहाँ पर आने का कि सचमुच में आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना है। अगर नहीं है तो बस 2 लोग यहाँ पर आएंगे, बस फीडबैक देंगे यहाँ पर, 2 लोग कोई भी आएंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर आके फीडबैक देंगे, कोई भी 2। जल्दी से आ जाइए, मैंने बोलूँगा ये अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। कोई भी 2 लोग आ जाइए, मुझे पता है बहुत से लोग आएंगे, मारामारी करेंगे, टाइम लगाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग चाहिए। यस आप आ जाइए, ब्लैक, हाँ ब्लैक शर्ट, हाँ आप चलेगा, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, हाँ आपके आगे, आपके आगे, हाँ आइए, हाँ 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 यहाँ पर आइए प्लीज, शेयर योर व्यूज रिगार्डिंग टू टुडेज सेशन। अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। कृष्णा जाधव, कृष्णा झा, हाँ बोलिए। बिजनेस का है बहुत क्या क्या समझ में आया आपको? मैं बिजनेस में आगे कैसे बढ़ाऊं? स्टार्ट करने का नहीं होता है? कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो लॉस से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं होगा। क्या बात, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके आप कीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन के आप लोग आज से चालू कर दीजिएगा। कैलकुलेट में भी बहुत सारे बिजनेस में लॉस हुआ, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क बोला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ देखो, ऐसा सवाल पूछना चाहिए। अभी सही सवाल पूछा, कोई भी बिजनेस शुरू करने से प्रॉफिट क्यों नहीं आता? आप मैं 15 मिनट हूँ, कोई बात नहीं, 3 मिनट आंसर दे रहा हूँ। कोई भी बिजनेस में स्टार्टिंग में प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता है? बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन ये पुरानी बात हो गई है। अगर आप सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं तो पहले दिन से आपका बिजनेस प्रॉफिट कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल है अग्रवाल साहब का। अग्रवाल साहब के 2 बेटे थे, वो उनका बहुत पुराना न्यूज़पेपर का बिजनेस चल रहा था, और वो उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल चल रहा था। उनके 2 लड़के थे, दोनों लंदन में जाते हैं, एमबीए करके आते हैं वहां से, और एमबीए करने के बाद उन्होंने बोला हमको टाइम्स ऑफ इंडिया को टफ देना है। उन्होंने ऐसा बिजनेस किया, पहले दिन से, अगर आपने डीएनए का नाम सुना होगा, पहले दिन से वो बिजनेस कर रहा है। दूसरा है जागरण, दैनिक जागरण, पहले दिन से उन्हीं का ये दैनिक जागरण और अग्रवाल साहब का ये हो, दैनिक जागरण और डीएनए पहले दिन से टाइम्स ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट चल रहा है। आपके पास सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बस, और वही तो आप सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सही सवाल। और कोई सवाल यहाँ से 10 में कोई उसको सवाल पूछिए। हम तो लड़की हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई कारण है? कोई सवाल सर? हाँ एक मिनट, इन्होंने पहले हाथ उठाया कि यस। हाँ आता हे हा प्रश्न मी जेव्हा इंजीनियरिंग कॉलेजमध्ये शिकवत होतो, बहुत सही सवाल पूछा। इनका सवाल है कि जहाँ पर इंटरनेट नहीं आता है वहाँ पर हम लोग कैसे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इंटरनेट को सेव कर सकते हैं क्या? इंटरनेट को अभी जैसे कल यहाँ पर लाइटिंग हुआ था परसों, तो सब पूरे कल्याण में वो उड़ गया था। इंटरनेट जिनके पास था, इंटरनेट का पूरा जो केबल था पूरा उड़ गया था। तो ऐसे समय क्या किया जाए, तो इस पर आप इनोवेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये एक इंजीनियरिंग, मैं जब जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में था वहाँ पे एक बच्चे ने प्रोजेक्ट दिया कि जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। अभी तो 7 लाख गांव में हमारा जो देश है, ये गांव का शहर, ये अपना देश है। 7 लाख गांव है यहाँ पर, और याद रखिए मुंबई के साथ साथ 2 टायर सिटी और 3 टायर सिटी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, तो आप वहाँ पर ये कर सकते हैं। थोड़ा संशोधन कीजिएगा। यस, गुड इवनिंग। यस आप फेलियर से कैसे डील करते हैं? हाँ, फेलियर से कैसे डील करते हैं? आपको आदत लग गई, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो आता है वो कुछ भी करके चला जाता है। इसको बोलते हैं इमोशन हाईजेक। फेलियर में क्या होता है, हम लोग इमोशन हाईजेक हो जाते हैं, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने रिजेक्शन, यही तो आपको चैलेंज है ना 30 दिन का। मैम आपने फोटो निकाला है सबका,
30 दिन का चैलेंज जो आपने लिया है, ये फेलियर से जो रिजेक्ट करना है, अगर 30 दिन तक आपके साथ रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ फर्क पड़ेगा। पहला दिन लगेगा, अरे यार अपना सबके सामने पूरा रिजेक्ट का भाजी पाला कर दिया, ऐसा लगेगा पहला दिन। पहले दिन ऐसे डायलॉग आएंगे, लेकिन तीसरे दिन आप क्या बन जाएंगे? झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं, अब झुकने का खौफ नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे तब तब कर हीरा बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? Being a good leader isn't about having power over others, but about instilling power in others. Indeed, this quote is best to our young dynamic, beauty with brain, our very own principal ma'am. I request our respected principal ma'am to address us all. Thank you so much. Good evening to everyone. So I feel addressing is something after Dinesh sir is not where I stand. So first of all, thank you so much, Dr. Dinesh Gupta sir, for accepting our invitation and being with us. So sir had a very busy schedule today, so this is the third lecture I believe, and he also is celebrating his son's birthday today. So of course we wish your son a very blessed life. And as sir said, he starting में ही उन्होंने 3 चीजें हमें बताई. So what was the 3 things that we need to work on? Awareness. Yes, believe in yourself, trust in yourself, give your 100%. And the third one was live in your present, don't carry your past. So these 3 things, of course, sir, we as teachers and students will of course work on. And apart from this, what sir mentioned in his business strategy was to observe, analyze, and of course be aware. So let's start this journey of all these 3 things that we promised sir. And of course, जो assignment sir ने दिया, क्या assignment था बच्चा? Rejection. Please मेरे पास मत आना छुट्टी के लिए, वो मैं अभी ना बोल रही हूँ. So yeah, so of course let's do this assignment together of listening to no, which is very rare. So thank you once again sir, and of course my dear students and teachers for patience listening. Thank you. To end up in formal way, I request Ms. Madhuri Pandey from TYBMS to propose formal vote of thanks. Let us be grateful to the people who make us happy. They are the charming gardeners who make us our soul blossom. A very warm good evening to dignitaries and all present today. It is my privilege to be asked to propose vote of thanks on 6th Gnam Yagna series for the academy year 2022 and 23. I, on behalf of Department of Management Studies, extend a hearty gratitude to our Honorable Chairman, Dr. C.M. Mahesh Bhivandiga sir, a man with a perfect vision to mold all students into a bright entrepreneur and especially successful achievers. Big thank you to our strong pillar of our college, respected Principal Ms. Sophia D'Souza ma'am and Vice Principal Ms. Sana Khan ma'am for always motivating us and guiding us in every obstacles we face. My sincerely thanks to our guest speaker, Professor Dr. Dinesh Gupta sir, for gracing our crucial work and sharing with us your opinion today. I am also thank you to our Department of Management Studies, especially teaching and non-teaching staff and dear friends to be wonderful audience. Sincerely thanks to the technical team for your all-time support. Thank you once again.